पक्का यू आर हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन, राइट? आपको डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन के लिए ऑलरेडी आपको कंडीशन दी है, वही सेम चीज आपको यूज करनी है, राइट? टेबल, डोमेन का टेबल जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। Right. Just you have to use that only. See over here. And for under root 4 minus x, this your 4 minus x should be greater than or equal to 0 or not? Right. For under root 4 minus x, your 4 minus x should be greater than or equal to 0. That means your x should be less than or equal to 4. For denominator, your x square minus 1 should be greater than 0. That means your x square should be greater than 1. That means your x should be greater than 1 or x should be less than minus 1. ये सारी चीजें समझाई हैं, तो आइदर वो -1 से छोटा होना चाहिए, आइदर या 1 से बड़ा होना चाहिए. सो हियर वी आर हैविंग और इन बिटवीन. ओके, दिस इज योर और. ओके, आइदर ये पोर्शन मिल रहा है या ये. उसके साथ आप लेस देन और इक्वल टू 4 को एंड करो, राइट? लेस देन इक्वल टू 4, दिस इज योर 4, दैट 4 इज इंक्लूडेड. अब उससे लेस देन, तो कॉमन इंटरसेक्शन एरिया कौन सा है? इतना एरिया और इतना एरिया, राइट? सो -∞ to -1 ओपन इंटरवल, union open interval 1 to close interval 4. This is yours. Chalo, question number 62. If A is this, B is this, then number of elements in A cross B union number of elements intersection B cross A. So चलो कैसे फाइंड कर सकते हैं? A क्रॉस B एंड B क्रॉस A. तो पहले उन दोनों में कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, टेल मी. फिर उसका इंटरसेक्शन. तो इसमें किस किस को डाउट है पहले वो बताओ. अगर डाउट नहीं है तो फिर डिस्कशन करने में टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं. ओके, सो if A contains 1 2 3 4, B contains 1 2 3, then tell me how we can find this, right? Number of elements in A cross B intersection B cross A. Anyone is having doubt in question number 62? Raise your hand. Tell me, anyone? No one is having doubt in this, right? A cross B intersection B cross A. इसमें आपके कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 1 2 2 3 3, राइट? चलो, क्वेश्चन नंबर 3. How many are having doubt in question number 3? No one is having doubt in question number 63 as well. Okay, question number 64. में भी आपको डाउट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 64. Okay, no doubts in 64 as well, right? चलो, I think initial question easy है. Question number 65. How many are having doubt in question number 65? Okay, no doubt in 65 as well, right? Tan theta से sin theta निकालना है. You can use right angle triangle and quadrant concept. Question number 66. How many are having doubt in question number 66? Okay, only one student. What about others? Okay, so number of elements in U आपको दिए हैं, A, B and A intersection B दिया है. They are asking you A dash intersection B dash. बस hint दे रहा हूँ, उससे हो जाएगा. Easy question है. First use De Morgan's law. So this is your number of A intersection B whole dash or not.
राइट, ए इंटरसेक्शन भी होल बार हो जाएगा कि नहीं. सो दिस इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू वो आपको दिया गया है x एंड ए इंटरसेक्शन बी में है w. सो दिस इज योर x माइनस w आंसर. ओके, फ्री के मार्क्स लेने हैं. चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67. हाउ मेनी ऑफ आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 67? डोमेन फाइंड करना है. ओके, सो लॉग का बेस क्या हो सकता है? ऑलवेज पॉजिटिव एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 1. ओके, दैट्स इट. बाकी अंडर रूट 3 माइनस एक्स के लिए तो आपको पता ही है. अच्छा, इसमें डाउट है? चलो, ये लॉग का बेस है 2x प्लस 5, राइट. तो उसके लिए आपका बेस 2x प्लस 5 शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव and your 2x plus 5 should not be equal to 1. And for root 3 minus x, your 3 minus x should be greater than 0. So here your x should be greater than minus 5 by 2. Right. Here your 2x should not be equal to 1 minus 5, that is minus 4. That is x should not be equal to minus 4 by 2, that is minus 2. X should not be equal to minus 2. X should be greater than minus 5 by 2. Now 3 minus x is greater than 0, that means x should be less than 3. Right. Now combine all of this. So this is your number line. 3 से कम, so less than 3. माइनस 5/2 से ऊपर, राइट, बीच में यहाँ पे 0 आएगा. दिस इज योर माइनस 5/2. ओपन इंटरवल यहाँ से ऊपर, एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू -2. -2 आपका आएगा यहाँ पे. ओके, तो -2 आइदर वो आपको माइनस करके दे सकते हैं या -2 से यूनियन करके दे सकते हैं. तो यहाँ -2 से यूनियन करके दिया है. सो फर्स्ट विल गेट फ्रॉम -5/2 ओपन इंटरवल टू -2 यूनियन ओपन इंटरवल -2 to 3. राइट, इससे बीच में आपका -2 कवर ही नहीं होगा. राइट, आप पहले यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक. -5/2 to -2 यूनियन -2 to 3. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 67 क्या अभी क्लियर हुआ? नाउ 68. हाउ मेनी फॉर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 68? रेज योर हैंड. ओके, 3:15 को याद दिलाना. वी विल टेक अटेंडेंस. ओके, कौन कौन एब्सेंट है विल सी. 68 was in last empty, right? Last empty का क्वेश्चन है. हाँ, ओके, आसान है. यस, ग्रेट. चलो, क्वेश्चन नंबर 69. हाउ मेनी फॉर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 69? u into v रूल, राइट, बस u into v रूल यूज करना था. ओके, टेल मी, हो जाएगा u into v रूल? चलो, क्वेश्चन नंबर 70. हाउ मेनी फॉर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 70? Okay. Let x belongs to closed interval 0 to 4 pi, satisfying the equation sin x plus 2, sin x plus 3, sin x plus 4 equal to 6. Okay. If the sum of all values of x is of the form k pi, okay, then the value of k is, मतलब x की आपको जितनी भी वैल्यूज मिल रही है उन सबका सम आपको दिया है k pi. Okay. So let us see over here. अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो sin x की वैल्यू ऑलवेज -1 से 1 के बीच में आएगी, isn't it? sin x की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में आएगी ऑलवेज. समझना यहाँ पे मैं सारी टर्म्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ. सो साइन की वैल्यू ऑलवेज -1 से 1 के बीच में आएगी. तो फर्स्ट टर्म is sin plus 2. तो -1 plus 2 is less than or equal to sin plus 2 is less than or equal to 1 plus 2. 2 minus 1 is 1. 1 is less than or equal to sin plus 2 is less than or equal to 3. राइट, तो sin plus 2 आपका 1 और 3 के बीच में आएगा. Now in the same way sin plus 3. So -1 plus 3 less than or equal to sin plus 3 less than or equal to 1 plus 3. 3 minus 1 is 2 less than or equal to sin plus 3 less than or equal to 4. तो वो आपका 2 और 4 के बीच में आ जाएगा. राइट, नाउ sin plus 4. इन द सेम वे अब sin plus 4 करोगे तो इधर आपका 5 जाएगा एंड 5 minus 1 4. राइट, सो सिमिलरली sin plus 4 वो आपका आ जाएगा 5 एंड 5 minus 1 नहीं सॉरी 4 ऐड कर रहा हूँ ना तो 3.
ओके, साइन प्लस 1 साइन प्लस 4 आपका 3 और 5 के बीच में आएगा, या ऊपर वाले में बस एक ऐड कर दो। सो यू कैन सी ओवर हियर जो आपके तीनों मल्टीपल हैं वो तीनों मल्टीपल आपके पॉजिटिव ही होंगे। ओके, और तीनों मल्टीपल की वैल्यू आप ले रहे हो 1 और 3 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, और 3 और 5 के बीच में। सो जब इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे, ऑल थ्री आर पॉजिटिव, so 3 into 2 6, 6 into 1 6, 6 is less than or equal to sine plus 2 into sine plus 3 into sine plus 4 is less than or equal to 5 4s are 20, 20 3s are 60, isn't it? कि जब आप सबकी मैक्सिमम वैल्यू लोगे, क्योंकि तीनों जगह आपका साइन ही है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन ऑल दिस थ्री प्लेसेस यू आर हैविंग साइन ओनली, तो साइन की जो वैल्यू आप एक जगह पे लोगे वही आपकी दोनों जगह पे लेनी है। So if you take sine equal to -1 on all three places, you will get 6. You will take sine on 1 on all three places, you will get 60. फिर इन बिटवीन आप साइन की जो वैल्यू लोगे उस तरीके से आपको 6 और 60 के बीच में सारी वैल्यू मिलेगी। क्या ये चीज क्लियर हुई पहले? राइट। चलो अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, इन तीनों का प्रोडक्ट 6 है। तीनों का प्रोडक्ट 6 है, मतलब हमारी रेंज से देखो तीनों का प्रोडक्ट 6 कब हो सकता है? राइट, इट इज योर लोएस्ट कंडीशन और नॉट? इन तीनों का प्रोडक्ट 6 हो सकता है, दैट मीन्स your value of sine is -1. Are you getting my point? ये बस यहाँ से मार्क करना है। तो जो हमें पहले क्वेश्चन देते थे sin x प्लस sin y प्लस sin z इक्वल टू 3, वहां से हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि sin x sin y sin z तीनों की वैल्यू आपकी 1 1 1 होनी चाहिए, तभी ये हो सकता है। इट इज सिमिलर टाइप ऑफ केस बट थोड़ा ट्विस्ट करके आपको दिया है। ओके, तो sin प्लस 2 sin प्लस 3 sin प्लस 4 की वैल्यू 6 तभी हो सकती है जब आप sin की वैल्यू -1 लोगे, isn't it? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स। ओके, तो साइन की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? -1। अब आपको क्या बोल रहा है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x इज ऑफ द फॉर्म k पाई। तो साइन x आपका -1 कहाँ पे होता है? सी ओवर हियर, राइट। साइन x एक्सिस पे 0 होता है, साइन यहाँ पे 1 होता है, साइन यहाँ पे -1 होता है, और वो आपको लिखना है 0 से 4 पाई के बीच में, राइट। सो फर्स्ट राउंड में अगर आप घूमोगे, सो दिस इज योर पाई, राइट। दिस इज योर 3 पाई बाई 2 और नॉट, पाई प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। ओके, वो आपका 0 से 2 पाई में आ जाएगा। तो वापस जब पूरा घूम के आओगे, सो दिस इज योर 2 पाई एंड 3 पाई, सो 3 पाई प्लस पाई बाई 2, इट इज योर 3 2 6 प्लस 1 7 पाई बाई 2। ओके, तो एक्स के आपको दो आंसर मिलेंगे, 3 पाई बाई 2 एंड 7 पाई बाई 2, हु आर बिटवीन 0 to 4 पाई। अब इन दोनों का सम आपको सम करना है, सो हियर 3 पाई बाई 2 प्लस 7 पाई बाई 2, it is equal to 7 plus 3 10 pi by 2, which is equal to 5 pi. अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला? that it is of the form of k pi, find the value of k. So it is of the form of k pi, find the value of k. So if we simplify here, so your k will be equal to 5. So k is equal to 5. Is it clear? Please type in chat box question number 70. Okay, मजा आया? Right, it's a good question. चलो 71. Okay, how many are having doubt in question number 71? Just raise your hand. Only single student. Okay, maximum value of this, maximum value of 1 plus sine pi by 4 plus alpha plus 2 times cos pi by 4 minus alpha. Okay, 2 students. See over here. तो सबसे पहले तो आपको साइन पाई बाई 4 प्लस अल्फा और कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और दोनों को कोई भी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सी ओवर हियर। सो 1 प्लस now sin pi by 4 plus alpha, उसकी फॉर्मूला क्या है? It is your sin pi by 4 cos alpha plus cos pi by 4 sin alpha, right, plus 2 times now cos pi by 4 minus alpha, right, ये आपका हो जाएगा cos pi by 4 cos alpha minus माइनस की जगह आपका सॉरी प्लस आ जाएगा sin pi by 4 sin alpha. Now let us put all these values. Okay, so this is equal to 1 plus sin pi by 4 is 1 upon root 2 cos alpha, cos pi by 4 is 1 upon root 2 sin alpha, plus 2 times cos pi by 4 is 1 upon root 2 cos alpha,
प्लस 2 टाइम्स sin pi by 4 इज 1/√2 sin अल्फा। ठीक है, अब sin अल्फा cos अल्फा में देख लो आपके क्या क्या कोएफिशिएंट बन रहे हैं। फॉर sin अल्फा इट इज 2/√2 प्लस 1/√2। सो 2 + 1 आप 3/√2 लिख सकते हैं, या आप उसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सो ये आपका एक्जेक्टली √2 हो जाएगा, राइट। तो sin अल्फा का आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा √2 प्लस 1/√2 sin अल्फा। ओके, एंड प्लस सेम फॉर cos अल्फा √2 प्लस 1/√2 cos अल्फा। अब √2 प्लस 1/√2 अगर मैं कॉमन निकाल दूं, सो यू विल गेट sin अल्फा प्लस cos अल्फा। अब आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो अब इसमें ये चीजें तो आपकी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या बचा, sin अल्फा प्लस cos अल्फा। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको पता ही है, मिनिमम वैल्यू माइनस √a² प्लस b², maximum value plus √a² plus b², where your a and b is 1. So your maximum value will be equal to √a² plus b² √1² plus 1², which is equal to √2. So जब मैं इसकी maximum value √2 रखूंगा, so this function will be 1 plus √2 plus 1/√2 sin alpha plus cos alpha. Sin alpha plus cos alpha is what here, √2 or not? Okay, so √2 into √2, 1 plus √2 into √2, 2. 2 plus 1 divided by √2 into √2. So it is equal to 1 plus 2 plus 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Is it clear now? पता चला? Okay. So maximum value is 4 over here. Please give me some response. Okay. तो इस तरीके से आपको करना है, राइट। इस तरीके से आपको बस थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, क्योंकि सिर्फ साइन प्लस कॉस आपको दे देते, राइट, डायरेक्ट ये दे देते तो डायरेक्ट आप ये फाइंड कर लेते, राइट, बट यहाँ से यहाँ जाना है। ओके, सो इट इज 3:14 एंड सो लेट अस स्किप टिल हियर। क्वेश्चन नंबर 72 में किसी को डाउट है, राइट। मिनिमम वैल्यू पूछी है, कैसे फाइंड करोगे मैक्सिमम मिनिमा, डिफरेंशियल कंसेप्ट और नॉट, राइट। एनीवन इज हैविंग डाउट इन 72? टेल मी। नो डाउट, राइट? 72 ओके, है डाउट? मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, m1 डिफरेंशियल इंटीग्रल और नॉट, मतलब नॉट इंटीग्रल, m1 मैं बता रहा हूँ, राइट। फर्स्ट आप डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करोगे, राइट। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, वो m1 आपको करो अच्छे से। y इज इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 7। ओके, यहाँ पे आपका ये होगा। सो first you need to take dy by dx equal to 0. So dy by dx is equal to 2 to the 4x minus 4x का differential 1, 7 का 0. If you take this as 0, so implies 4x is equal to 4, so implies x is equal to 1. Right. अब x is equal to 1 पे आपका फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, for that you need to find d square y by dx square, right? y आपका हो जाएगा 2 1 square minus 4 into 1 plus 7, and यहाँ से आप d square y by dx square find करोगे, so d square y by dx square equal to 4, which is positive, that means this value is minima. So 2 minus 4 plus 7, 2 minus 4 is minus 2, 7 minus 2 is 5. So this is your minimum value. Is it clear? Okay. So let us skip till here only. Right, now let me take your attendance. So